Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Aksa Islam, Assistant Professor of English from Government Degree College, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. Today we will start chapter number 9 of the novel Goodbye, Mr. Chips. This chapter is about Mr. Chips' life after Catherine's death. After 2 years of their marriage, Catherine died and her newborn baby also died. That had a great effect on Mr. Chips. The whole world was changed for him. He spent a very happy time with Catherine. She changed him very much. He became a new man. In the same way, her death had a great influence on him. Again, he became lonely. He was sad and was trying to adjust himself in his daily routine. His personality was changed. The changes in his personality were quite visible. This chapter is about those changes in his life and personality after Catherine's death. Now I am going to start with the text. Chips changed his more commodious apartments in schoolhouse for his old original bachelor quarters. He thought at first he would give up his house mastership, but the head persuaded him otherwise, and later he was glad. The work gave him something to do, filled up an emptiness in his mind and heart. He was different, everyone noticed it. Just as marriage had added something, so did bereavement. After the first stupor of grief, he became suddenly the kind of man whom boys at any rate unhesitatingly classed as old. It was not that he was less active, he could still knock up a half century on the cricket field, nor was it that he had lost any interest or keenness in his work. Actually, too, his hair had been graying for years, yet now, for the first time, people seemed to notice it. He was 50 once after some energetic fives, during which he had played as well as many a fellow half his age. He overheard a boy saying, "Not half bad for an old chap like him." अब इस पैराग्राफ में जो कुछ बताया गया है इसको मैं आपको समराइज करके बताती हूँ। कैथरीन की डेथ के बाद मिस्टर चिप्स ने बोर्डिंग हाउस के वसी कमरों या स्पेशियस अपार्टमेंट जो उसको दिया गया था उसको छोड़ दिया और पहले जहाँ वो अपने बैचलर क्वार्टर में रहता था वहाँ मुंतकिल हो गया। उसने सोचा कि वो बोर्डिंग हाउस का चार्ज भी छोड़ दे, लेकिन हेडमास्टर ने उसे ऐसा ना करने दिया और उसे कहा कि वो काम करे जिससे वो एक्टिव रहेगा और वो खुश रहेगा। काम ने उसे मसरूफ़ भी रखा और उसके दिलो दिमाग में जो खला पैदा हो गया था उसको भी पुर कर दिया। लेकिन उसके अंदर जो चेंजेस थे वो विजिबल थे और हर एक को नज़र आते थे, हर किसी ने महसूस किया कि वो बदल चुका था। जिस तरह से शादी ने उसकी पर्सनालिटी में तब्दीली पैदा कर दी थी, इसी तरह कैथरीन की मौत के बाद जो वो गमज़दा हो गया था, उसके बाद भी उसके अंदर तब्दीली आ गई। गम के पहले असर के बाद अचानक वो ऐसा इंसान बन गया जिसे लड़के बगैर किसी हेजिटेशन के बूढ़ा कहने लगे। अगरचे कि वो अभी भी एक्टिव था, चाको चौबंद था, अभी भी वो क्रिकेट के मैदान में 50 रन बना सकता था और ये बात भी ना थी कि वो काम में दिलचस्पी नहीं लेता था। ये हकीकत थी कि इसके बाल कई सालों से सफ़ेद हो रहे थे, लेकिन लोगों ने पहली बार जो उन पर तवज्जो दी और नोटिस किया कि वाकई अब वो बूढ़ा हो रहा है। अब उसकी उम्र 50 साल हो गई थी। एक दफ़ा उसने बड़े जोश के साथ 5 रन बनाए तो अपनी उम्र से वो इस तरह से खेला जैसे कि अपनी उम्र से आधे शख्स की उम्र की तरह खेल रहा हो। उसे एक लड़के को कहते हुए सुना, ऐसे बूढ़े शख्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। Chips, when he was over 80, used to recount that incident with many chuckles. Old at 50. It was Naylor who said that, and Naylor can't be far short of 50 himself by now. I wonder if he still thinks that 50 is such an age. Last I heard of him, he was lawyering, and lawyers live long. Look at Halsbury Chancellor at 82 and died at 99. There's age for you, too old at 50. Why? Fellows like that are too young at 50. I was myself a mere infant. चिप्स की उम्र जब 80 साल से ज़्यादा हो गई और उस वक्त मिसेस विकेट के यहाँ रहता था और अपनी गुज़श्ता वाक़यात को, गुज़श्ता ज़िंदगी को याद करता था, तो उस वाक़ये को वो याद करता था और मुंह बंद करके हंसता था, जिसको हम गिगल भी कहते हैं या चकल्स जो है उसको कहा जाता है। तो वो ये सोचता था 50 साल की उम्र में बूढ़ा, ये नेलर ने कहा था और अब नेलर खुद भी 50 से कम ना होगा। मैं हैरान हूँ कि वो अब भी 50 को ऐसी ही उम्र समझता है।
पिछली बार मैंने सुना था कि वो वकालत करता है और वकील तो लंबी उम्र पाते हैं। हॉल्सबेरी को देखो, वो 82 साल की उम्र में चांसलर था और 99 साल की उम्र में फौत हुआ। तुम्हारे लिए तो एक लंबी उम्र है। 50 साल की उम्र में ज़्यादा बूढ़ा होना। इस किस्म के लोग तो 50 साल की उम्र में बड़े जवान होते हैं। मैं खुद भी जवान था, बल्कि सिर्फ बच्चा ही था। And there was a sense in which it was true. For with the new century, there settled upon Chips a mellowness and gathered all his developing mannerisms and his often repeated jokes into a single harmony. No longer did he have those slight and occasional disciplinary troubles or feel diffident about his own work and worth. He found that his pride in Brookfield reflected back, giving him cause for pride in himself and his position. It was a service that gave him freedom to be supremely and completely himself. He had won by seniority and ripeness an uncharted no man's land of privilege. He had acquired the right to those gentle eccentricities that so often attack schoolmasters and parsons. He wore his gown till it was almost too tattered to hold together, and when he stood on the wooden bench by big hall steps to take call over, it was with an air of mystic abandonment to ritual. He held the school list, a long sheet curling over a board, and each boy, as he passed, spoke his own name for Chips to verify and then tick off on the list. That verifying glance was an easy and favorite subject of mimicry throughout the school. Steel rimmed spectacles slipping down the nose, eyebrows lifted one a little higher than the other, a gaze half rapt, half quizzical, and on windy days with gown and white hair and school list fluttering in uproarious confusion. The whole thing became a comic turn sandwiched between afternoon games and the return to classes. अब इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि मिस्टर चिप्स की पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस आ गए थे। उसकी रूटीन क्या थी, उसकी आदत, उसके चलने फिरने के तरीके क्या थे। अब वो बताते हैं कि एक लिहाज से ये बात ठीक थी। नई सदी के साथ चिप्स में एक राइपनेस, एक पुख्तगी आ गई थी, जिससे इसकी पुख्ता आदत और अक्सर किए जाने वाले मजाकों को, जोक्स को यकजा कर दिया था। अब इसे मामूली और कभी कभार की नस्म ज़ब्त की मुश्किलात का भी सामना न करना पड़ता था, क्योंकि उसका डिसिप्लिन इम्प्रूव हो चुका था और वो अपने काम में और अपनी अहमियत के बारे में अब ज़्यादा खुद एतमाद था। पहले उसके अंदर खुद एतमादी की कमी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। उसने महसूस किया कि ब्रुकफील्ड पे फ़ख्र करने से ये फ़ख्र उसकी अपनी ज़ात और अहमियत से मुनक्किस हो रहा है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। ये एक ऐसी खिदमत थी जिसने इसे आज़ादी दी और वह खुद आला तरीके और मुकम्मल तौर पर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने लगा। उससे अपनी सीनियरिटी और राइपनेस, पुख्तगी की वजह से अपने लिए एक ऐसा मकाम हासिल कर लिया जहाँ इसे ख़ास मराआत हासिल थी। वो मराआत उसने खुद अपने लिए हासिल कर ली थी, जहाँ किसी का अख्तियार ना था, किसी हुकूमत का जो है अमल दखल ना था, और जहाँ रहने वालों के हकूक़ मुतय्यन होते हैं। उसने वो धीमी और मखसूस आदत अपना ली थी जिनकी वजह से अक्सर स्कूल मास्टर और पादरी मजाक का निशाना बनते हैं, क्योंकि ये आदतें उनकी पुख्ता हो जाती हैं और जिनकी वजह से उनको मजाक का निशाना बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर उसका गाउन जो वो पहनता था, वो फट चुका था, घिसा पिटा था कि सही तरह से पहना भी ना जाता था। और जब वो बड़े हॉल की सीढ़ी के करीब खड़े होकर अटेंडेंस लगाता, तो ऐसे लगता जैसे वो किसी मजहबी रस्म में हिस्सा ले रहा है और उसमें मुनहमिक कर खो गया है। वह स्कूल की फहरिस्त पकड़ता, एक लंबी शीट इसको दोहरा करके बोर्ड पर रखता और हर लड़का जो करीब से गुजरता अपना नाम बोलता जाता, ताकि चिप्स इसके नाम की तस्दीक करके फहरिस्त पर निशान लगाए। तो ये उसका एक अटेंडेंस लगाने का तरीका था। ये तस्दीकी नज़र जो थी पूरे स्कूल में नकल के लिए आसान और पसंदीदा मौजू थी। बच्चे उसकी नकल उतारते थे जिस अंदाज में उनको देखता था। स्टील के फ्रेम वाली गोल ऐनक जो कि उसके नाक से नीचे फिसलती हुई महसूस होती थी, भवें उसकी ऊपर को उठी होती थी, एक तरफ की दूसरी से ज़रा ज़्यादा ऊपर उठी होती, और वो आधा जो है अपने ख्यालात में खोया हुआ और आधा तमस्खराना अंदाज में वो देखता था। और जिन दिनों हवाएं चलती तो गाउन और उसके सफ़ेद बाल और स्कूल की जो फहरिस्त थी वो इकट्ठे ही तेज़ी से फड़फड़ाते, और यह सारी चीज़ लड़कों की दोपहर की खेलों और उनके क्लासों में वापसी के दरमियान जो है एक सैंडविच जो है वो बन गई थी और एक इंतहाई मज़ा का खेस नज़र आती थी। Some of those names in little snatches of the chorus recurred to him afterwards, without any effort of memory. Ainsworth, Atwood, Evermore, Babcock, Bax, Bernard, Besant Wyatt, Battersby,
Brussels, Bedford, Marshall, Bentley, Best. Another one, Ansley, Wales, Wetham, Wagstaff, Wellington, Waters Primus, Waters Secundus, Watling, Waveny, Webb. And yet another that comprised, as he used to tell his fourth form Latinist, an excellent example of hexameter. Lancaster, Lutton, Lemay, Lytton, Bosworth, Mac, Gonigal, Mansfield. इनमें से कुछ नाम छोटे छोटे पैचेस की शक्ल में अभी भी उसकी याददाश्त में मौजूद थे, बगैर किसी कोशिश के जो है उसको याद आते रहते थे। अब इन तमाम पैराग्राफ्स में जो कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिए गए हैं, लड़कों के नाम बताए गए हैं कि किस तरह से वो उनको जैसे मीटर्स होते हैं पोइट्री में, उस अंदाज में उनको वो याद रखता था और उसके लिए याद रखना मुश्किल नहीं था। अब भी जब वो रिटायर हो चुका था और मिसेस विकेट के यहाँ रहता था तो अक्सर ये नाम उसकी याददाश्त में आ जाते थे। Where had they all gone to? He often pondered those threads he had once held together. How far had they scattered, some to break, others to weave into unknown patterns? The strange randomness of the world beguiled him. That randomness which never would, so long as the world lasted, give meaning to those choruses again. वो सोचता था कि वो सब कहाँ चले गए। वो अक्सर सोचा करता, वो धागे जो कभी इसने इकट्ठे किए थे, वो कहाँ इधर-उधर बिखर गए। कुछ टूट गए और कुछ नामालूम सांचों में उलझ गए। दुनिया की अजीब बेमकसदियत ने उसे फ़रेब में मुब्तला कर रखा था। ये बेमकसदियत जो कभी दोबारा इन लड़कों के इकट्ठा गाए गए गीत को कोई मानी नहीं दे सकेगी जब तक ये दुनिया कायम रहेगी। कि अभी वो सोचा करता था उन लड़कों के बारे में जिनको उसने पढ़ाया था और उनके नाम उसकी याददाश्त में थे कि वो सब कहाँ चले गए, कि टाइम जो है वो इतनी जल्दी से गुजर गया, अब दोबारा वो वक्त वापस नहीं आएगा। And behind Brookfield, as one may glimpse at mountain, a mountain behind another mountain, when the mist clears, he saw the world of change and conflict. And he saw it more than he realized with the remembered eyes of Kathy. She had not been able to bequeath him after all her mind, still less the brilliance of it. But she had left him with a calmness and a poise that accorded well with his own inward emotions. It was typical of him that he did not share the general Jingo bitterness against the Boers. Not that he was a pro Boer, he was far too traditional for that, and he disliked the kind of people who were pro Boers. But still, it did cross his mind at times that the Boers were engaged in a struggle that had a curious similarity to those of certain English history book heroes. Hereward and Wake, for instance, or Crataegus, he once tried to shock his fifth form by suggesting this, but they only thought it was one of his little jokes. ब्रुकफील्ड के पीछे वो तब्दीलियों और कशमकश वाली दुनिया को ऐसे देखता जैसे धुंध के साफ हो जाने पर कोई पहाड़ के पीछे एक और पहाड़ को देखता है। और ये सब कुछ कैथरीन की आंखों को याद करके और उसकी नज़र से वो देखता था और उसी अंदाज से महसूस करने की कोशिश करता था। अगरचे कि कैथरीन ने उसकी पर्सनालिटी को बहुत हद तक तब्दील किया था, अपने नज़रियात उसके जहन में मुंतकिल किए थे, मगर वो अपने तमाम नज़रियात उसको मुंतकिल नहीं कर सकी थी, उसको कम्प्लीटली चेंज भी नहीं कर सकी थी। लेकिन बहरहाल उसने काफ़ी हद तक जो उसके अंदर तब्दीली पैदा की, उससे उसके अंदर सुकून और तवाज़ुन जो है वो पैदा कर दिया था, जो कि उसके अपने अंदरूनी जज्बात से बहुत ज़्यादा मिलाप रखते थे। ये उसकी ख़ास बात थी कि वो आम लोगों की तरह बोवर्स के खिलाफ इंतहाई तल्ख जज्बात नहीं रखता था, ना ही वो बोवर्स का हिमायती था। इस सिलसिले में वो रिवायती था, उन लोगों को नापसंद करता था जो बोवर्स के हिमायती थे। लेकिन फिर भी कभी उसके जहन में ये बात ज़रूर आती कि बोवर्स एक ऐसी जद्दोजहद में मसरूफ़ थे जो इंग्लिस्तान की तारीख को कुछ मखसूस किताबों के हीरोज़ की जद्दोजहद से मिलती जुलती थी। मसलन हेवल्डिवेक मिसाल के तौर पर प्रैक्टिकस एक ऐसे दफ़ा के हीरो से जो है उसकी जद्दोजहद मुशाबह थी। एक दफ़ा उसने अपनी फिफ्थ क्लास को ये तमाम बातें बताई कि शायद उनके ऊपर कुछ जो है वो असर हो या उनको वो समझ सकें, लेकिन क्लास के लड़कों ने यही समझा कि वो मजाक कर रहा है। However heretical he might be about the Boers, he was orthodox about Mr. Lloyd George and the famous budget. He did not care for either of them, and when years later Lloyd George came as a guest of honor to Brookfield's speech day,
Chips said on being presented to him. Mr. Lord George, I am nearly old enough to remember you as a young man, and I confess that you seem to me to have improved a great deal. The head standing with them was rather aghast, but Lord George laughed heartily and talked to Chips more than to anyone else during the ceremonial and that followed. Just like Chips was commented afterwards, he gets away with it, I suppose, at the age, that age, anything to say to anybody is all right. उसके ख्यालात वर्स के मुतालिक वह कितने ही रिवायती क्यों ना हों, पर लॉर्ड जॉर्ज उसके पेश करदा बजट के बारे में अपने अपने ही ख़ास किस्म के ख्यालात रखता था। इसे इन दोनों में से किसी की भी परवाह नहीं थी और कई सालों के बाद जब लॉर्ड जॉर्ज ब्रुकफील्ड स्कूल की तकरीब में मेहमान खसूसी की हैसियत से आया तो चिप्स ने उसके सामने पेश किए जाने पर कहा, जनाब लॉर्ड जॉर्ज, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम्हारी जवानी को आसानी से याद नहीं कर सकता, और मैं ये बात मानता हूँ कि अब तुम पहले से बेहतर हालत में लगते हो, बहुत बेहतर हालत में। हेडमास्टर जो करीब ही खड़ा था वह हैरान रह गया, लेकिन लॉर्ड जॉर्ज खूब हंसा और उसने बाद में सबसे ज़्यादा गुफ्तगू चिप्स के बारे में ही की और उसके साथ ही की। बिल्कुल चिप्स अपनी असली हालत में बात में ये कमेंट दिया गया कि अपनी ही हालत में या अपने जो है जस्ट लाइक चिप्स, यानी कि चिप्स ही ऐसे कह सकता है, ये कहा गया। वो जो जी चाहे कर सकता है। मैं समझता हूँ कि मैं इस उम्र में आप जो कुछ भी दूसरों से कहें इसे ठीक समझा जाता है। Now, in this chapter, there are some words and phrases which I will like to explain. Chancellor. चांसलर जो है इंग्लिस्तान का सबसे बड़ा जो जज होता था उसे कहा जाता था लॉर्ड चांसलर और हाई चांसलर, और चांसलर ऑफ इंग्लैंड इज़ द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द क्राउन प्रिजाइडिंग द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि इंग्लिस्तान का जो सबसे बड़ा जज है उसे कहा जाता था। नो मैंस लैंड। No man's land is the area of land that lies between two opposing countries and is held by neither side. Here it means a position where there is no problem, no worry or no threat. अब दो ममालिक के दरमियान, उनकी सरहदों के दरमियान जो एक मखसूस पट्टी होती है उसे नो मैंस लैंड कहा जाता है। हर दो कंट्रीज़ के दरमियान होती है, वहाँ पर किसी मुल्क का कानून नहीं होता। और यहाँ पे नो मैंस लैंड जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है मिस्टर चिप्स के लिए, यानी कि उसकी ज़ात पर किसी दूसरे का अख्तियार नहीं था, अपनी ज़ात में अपनी आदात में वो आज़ाद था। मिस्टिक। मिस्टिक जो है किसी सूफी बुजुर्ग को कहा जाता है जो कि दुनिया से बेनियाज अपनी इबादत में मगन हो। स्पिरिचुअली जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, स्पिरिचुअल जो है इंसाइट उसकी बहुत ज़्यादा होती है। Ritual. A ritual is a religious service or other ceremony which involves a series of actions performed in a fixed order. कोई मजहबी रस्म या इसके अलावा कोई रिवायती किस्म की रस्म को भी कहा जा सकता है। क्यूजिकल मुज़हका खेस अंदाज में सर हिलाना या आपकी नज़र में जो है कोई सवालिया अंदाज या स्ट्रेंजनेस मौजूद है तो उसको कहा जाएगा। कोरस ग्रुप सिंगिंग को कहा जाता है ऐसा गीत जिसे बहुत सारे अफराद मिलकर गाएं। Latinist. A Latinist is the learner or a scholar of the Latin language of ancient Rome and its empire, यानी कि लातीनी ज़बान का माहिर या उसका तालिब इल्म। हेक्सामीटर। हेक्सामीटर जो है वो अंग्रेज़ी शायरी की एक लंबी बहर को कहा जाता है, जैसे उर्दू में बहर होती है इस तरह से इंग्लिश में जो है वो मीटर्स होते हैं। हेक्सामीटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हेक्सा विच मीन्स सिक्स एंड मीटर मीन्स द रेगुलर एंड रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स इन अ डेफिनेट पैटर्न। हेरवर्ड द वेक, जहाँ पर कुछ हीरोज़ का जिक्र किया गया है। The Wake was an Anglo-Saxon rebel against William the Conqueror and flourished in 1070 to 71. He is the hero of many Norman and English legends. Practicus, he was the king of the British tribe of Trinovantes. ये पहली सदी ईस्वी का बरतानवी कबीले का बादशाह था जिसने रोमियो के खिलाफ मुजाहमत की थी। हेरिटिकल। It means opinion or doctrine contrary to the orthodox doctrine of the Christian Church or to the accepted doctrine on any subject. The holder of such ideas is called heretic. यानी कि बाहियाना और नाकदाना ख्यालात का इजहार। लॉर्ड जॉर्ज के बजट के बारे में चिप्स ऐसे ही नज़रियात रखता था, लेकिन बहरहाल वो मुल्क का जो है वो बागी भी नहीं था, मुल्क के खिलाफ भी नहीं था, एक बैलेंस्ड वे में अपने ख्यालात का इजहार करता था। ऑर्थोडॉक्स। Orthodox is a person who holds the ideas which are authoritatively established.
Here the reference to the chips means traditional views, पुराने रिवायती ख्यालात का हामिल शख्स. Lloyd George. In December 1905, the Conservative Prime Minister Arthur Balfour resigned, and in the general election of January 1906, the Liberal Party won a massive majority. David Lloyd George, a Welsh socialist, was one of them. लॉर्ड जॉर्ज 1909 में वज़ीर ख़जाना थे जब मुतनाज़ा बजट पेश किया गया. बाद में जंग के दौरान 1916 में वो वज़ीर आज़म बने थे. फेमस बजट, इसका भी यहाँ पर जिक्र हुआ है. 1909 में का जो बजट जो लॉर्ड जॉर्ज ने पेश किया था वो एक मुतनाज़ा बन गया था और मुखालिफ पार्टी ने ज़बरदस्त एहतजाज किया था. इस बजट में बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए थे जो कि वहाँ के रिच या वेल्दी लोगों के ऊपर थे और उससे जो फंड जो है वो इकट्ठा किया जाना था उसके ज़रिए उन्हें सोशल प्रोग्राम्स बनाने थे गरीब लोगों के लिए. इसके अलावा यहाँ पे बोर्स का जिक्र हुआ है. बोर्स के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जिस ज़माने में ये नावल लिखा गया या जबकि ये बात है उस वक्त जो है यूनाइटेड किंगडम और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक टसल चल रही थी. साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो अपनी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए लड़ रहे थे, यानी कि वहाँ पर इंग्लिस्तान का कब्ज़ा था और वहाँ के लोग जो है वो अपने फ्रीडम की खातिर जो है आज़ादी की जद्दोजहद की खातिर लड़ रहे थे. तो जो इंग्लिस्तान के लोग थे वो बोर्स के ख़िलाफ़ थे. अब मिस्टर चिप्स जो है वो बोर्स के ख़िलाफ़ नहीं था क्योंकि उसका कहना ये था कि उनका राइट है कि वो आज़ादी हासिल करें. अगर वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए लड़ रहे हैं तो हम उनको गलत नहीं कह सकते. लेकिन वो अपने मुल्क का गद्दार भी नहीं था. वो ये नहीं कहता था कि मैं उनका हिमायती हूँ. बहरहाल वो उसने एक तरह से बच्चों को समझाने की कोशिश भी की कि जिस तरह से बोर्स अपनी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक वक्त था कि इंग्लिस्तान के लोगों ने भी अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए कोशिश की थी. तो हमें उनका मुखालिफ भी नहीं होना चाहिए. तो उसके अपने ख़यालात थे जो लोगों से मुख्तलिफ थे. तो ऐसी ही एक जंग जो है हमने भी बरतानिया के ख़िलाफ़ लड़ी थी आज़ादी हासिल करने के लिए. तो वो सेम वो जद्दोजहद थी, वो स्ट्रगल थी जो वो लोग कर रहे थे और साउथ अफ्रीका के लोगों ने इसमें जो है कामयाबी हासिल की और उनका अलहदा जो है एक फ्री कंट्री जो है उनकी बन गई थी. डियर स्टूडेंट्स, इस हिस्से में मैंने आपको इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसकी टेक्स्ट और उसके बाद जो इसमें कुछ फ्रेजेस और वर्ड्स इस्तेमाल हुए थे उनके मीनिंग्स बताए हैं. और इसी के पार्ट बी में मैं आपको इसे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताऊंगी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके क्या जो है वो आंसर्स हो सकते हैं. थैंक यू.